My precious brothers and sisters and my little children, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और छोटे बच्चों, मैं आप प्रत्येक जन को यीशु मसीह के नाम पे प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today we are going to meditate Psalm 86 verse 7. और आज के दिन हम भजन संहिता 86:7 पे मनन करेंगे। This is a prayer of David. और ये एक दाऊद का प्रार्थना है। David prayed like this. और दाऊद ने इस तरह से प्रार्थना किया, In the day of my trouble, I will call upon you, for you will answer me. संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। Our God is a prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर है प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। So we have to seek His face all the time. और हमें हमेशा उनकी आंखों की ओर देखना होगा। David was so close to God, that's why he sought Him diligently. और दाऊद प्रभु के इतने निकट था, इसीलिए वो सच्चाई से उनको ढूंढता था। Psalm 63 verse 1 says, early in the morning he sought Him. और भजन संहिता 66:1 में कहा गया है कि सुबह सुबह प्रभु को ढूंढता था। Same 63 Psalm verse 6 says, he sought Him in the night, during the night. और उसी वचन में हम ये पढ़ते हैं कि रात के समय भी वो प्रभु को ढूंढ रहा था। And Psalm 55 verse 17 we read that he sought Him 3 times in a day. और हम भजन संहिता 55:17 में पढ़ते हैं कि दिन के 3 बार प्रभु को ढूंढ रहा था। That is the true Christian life. और यही एक सच्चा मसीह जीवन है। Psalm 121 verse 1 and 2 says, we have to seek Him whenever we need His help. भजन संहिता 121:1-2 में हम पढ़ते हैं कि जब भी हमें कोई सहायता की आवश्यकता होती है तब उसकी ओर हमें देखना होगा। Daily we should seek His face. और प्रतिदिन हमें उनके चेहरे की ओर देखना होगा। Not a single minute or 5 minutes or so. एक क्षण या 5 क्षण ऐसा नहीं। We should have the practice of pouring our hearts before Him. और हमारी ऐसी आदत होनी चाहिए कि हृदय में जो भी वेदना है उसके सामने उड़ेलना चाहिए। According to Psalm 121 verse 2, help will come from the Lord immediately in a miraculous way. और भजन संहिता 121:1 और 2 में जब हम पढ़ते हैं तब हमारे लिए जो सहायता है अद्भुत रूप से प्रभु की ओर से आएगी। Psalm 86 verse 7 says, और भजन संहिता 66:7 में हम पढ़ते हैं the same thing. और यही चीज हम पढ़ते हैं। And Isaiah 61 verse 3 says, और यशायाह 61:7 में हम पढ़ते हैं, when we are going through such problems in our lives, heartaches, pain in the mind, pain in the body, so on, and when we look unto God, He will give us peace. और जब हम हमारे जीवन में इस तरह के वेदना से होकर गुजरते हैं तब प्रभु हमें एक ईश्वरीय शांति से भर देंगे। And He will fill us with His joy. और प्रभु हमको ईश्वरीय खुशी से भर देंगे। Same thing happened in my life twice. और मेरे जीवन में 2 बार ऐसा हुआ। I lost my only daughter. और मैंने मेरी बेटी को खो दिया था। And I lost my precious husband, brother Dinakaran also. और मैंने मेरे प्रिय पति भाई डीजीएस दिनकरन को भी खो दिया था। Oh, I was so sad in my heart. और मैं हृदय में टूट चुकी थी। Both the times the Lord, the Holy Spirit took over my life, filled me with the power of God and strengthened me and made me happy to go on and on and on. और दोनों बार पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को भर दिया और मुझे आगे चलने में प्रेरणा दिया। Yes, the same Holy Spirit will strengthen you also. और आज के दिन वही पवित्र आत्मा आपको भी बलवंत करेगा। My friends, look unto God. हे मेरे दोस्तों, आप यीशु की ओर देखिएगा। You will be full of God's peace and all His blessings. और आप परमेश्वर की शांति और आशीषों से भर जाएंगे। Shall we pray? आइए अभी हम प्रार्थना Father, करें। those who are looking unto you right now, Lord, fill them with your peace, joy, and the full of the Holy Spirit. हे प्रभु, इस वक्त जो जो आपकी ओर देख रहे हैं आप उनको अपनी शांति और खुशी और आशीषों से भर दीजिएगा। Let them be overflowing with the joy of the Lord. और इसी वक्त तो प्रभु की खुशी से उनको भर दीजिएगा। Take away all their worries and tears. और उनके जीवन से सारे आंसू और दुख को दूर कीजिएगा। Whatever they need, bless them right now, for Father. और उनको जो जो आशीषें चाहिए वो आप दीजिएगा। Give them all your blessings. और आप अपनी सारी आशीषें दीजिएगा। In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन। Amen. आमीन।